Now closer home, ladies and gentlemen, in Assam, massive move. The government is mulling options to ban polygamy ahead of 2024. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has formed an expert committee to examine legality around polygamy. The 4-member panel will be chaired by retired Judge Rumi Fukan and has been given 60 days to submit its report. This only after speaking to all the stakeholders in the matter. So who are all in the panel? Justice Rumi Fukan, retired judge. Debajit Sakya is the Advocate General Assam. Nalin Kohli, Additional Advocate General Assam. And Nekibur Zaman, he's also an advocate. So, people with strong legal understanding form this panel, and across the sections of society and understanding, and they are going to speak with everyone. Now, even as the Assam government is vowing to end polygamy, AIUDF has alleged conspiracy and said that the state needs to do some research as it is practiced across religion. Government has decided to constitute a committee to scrutinize the provision of the Muslim Personnel Law Sharia Act 1937 along with Article 25 of the Constitution of India in relation to the directive principle of state policy for a uniform civil code. So we are not going towards UCC. मुसलमान और डिवोर्स बहुबिया सबसे कम अन्य जातीय बेसी करे पहले ऑफ द रेकर्ड करे आमान मानुए जो एटा करे बा दुईटा करे हाम बिया करिबो नआरिबो मस्जिदत যায় কাজে রেকর্ড করে এটো রেকর্ডত পাওয়া যায় তাহলে যে গলে তিনটা চারিটা রাখি আছে আর ইললিগ্যাল রাখি আছে So what's the problem? Whether it is one religion or many, if it is polygamy and if it is wrong, it is banned, it's illegal for everyone. What is the status of polygamy in India? It is prohibited in all religious communities in India except in Islam. The practicing polygamy is an offence. It is punishable under sections 494 and 495 of the Indian Penal Code. Now, as per the Muslim laws, a man can have up to 4 wives and a woman can have only one husband. The section 2/7 of the Sharia Act allows the application of polygamy, and law says polygamy is neither mandatory nor encouraged. Pramod Swami, leader of the BJP, with us. Champak Kalita, AIUDF leader, is also with us. Champak Kalita ji, Pramod Swami ji, namaste, Jai Hind. Champak Kalita ji, problem क्या है? अगर दूसरा धर्म में भी कर रहा है, वो गलत है, इलीगल है, तो बंद कर दो. जी. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चंपक जी, आवाज आ रही है? Well, the AIUDF will try and connect with Champak Kalita. He's not getting the audio. Let's sort that out quickly, please. Pramod Swami ji, is this with an agenda? No, there is no agenda. अभी जैसे आपने कहा कि पोलिगमी के विरुद्ध में अगर कोई कानून बनता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, और बदरुद्दीन साहब ने कहा कि कई लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से 2-3 शादियां करते हैं, तो अगर कोई गैर कानूनी तरीके से करता है तो उसके खिलाफ भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और उसके खिलाफ भी व्यवस्था होनी चाहिए. इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है. अभी मूल प्रश्न ये है कि पोलीग्रामी जैसी जो कुप्रथा है, क्या वो इस देश में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए. तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक कमेटी बनाई है जो इसके कानूनी पहलुओं और स्टेक होल्डरों से बात चल करके 60 दिन के अंदर में एक रिपोर्ट दाखिल करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें आगे की दिशा में जो है असम सरकार आगे बढ़ेगी. तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसके पीछे इंटेंशन ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति जिसको हम बोलते हैं, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, सिर्फ इनको बच्चा पैदा करने की मशीन न समझा जाए, बल्कि इनको भी आगे बढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर या अपने क्षेत्र में देश का सुनाम करने के अलावा अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व का निखार करने का इनको भी हक है. तो लेकिन आज जिस तरह से जो देश में शरीयत कानून की बात कही जाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की पर एक बात बताइए प्रमोद स्वामी जी, यहाँ आजकल एक परिवार जो है, मियाँ बीवी जो है, वो घर नहीं चलता. एलपीजी सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं, एक घर को संभालना, इसको संभालना मुश्किल होता है पति पत्नी के लिए. कौन 4-4 शादियां करता है?
यही तो सवाल है कि अगर देश में इस तरह की स्थिति है तो फिर 4-4 जब शादी आप करते हैं तो फिर अपने बच्चों को भी आप उस तरह की शिक्षा और उस तरह के संस्कार नहीं दे पाते, जिससे वो उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ आपके जो अगर जो बच्चे उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य देना भी एक माता पिता का फर्ज है। तो अब ये तो अगर ये इंटेंट यही है तो चंपक कालिता जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। AIUDF को क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी प्रमोद स्वामी जी ने बताया कि बच्चों का हेल्थ एजुकेशन, तो इसमें आसाम 28 नंबर में है। आसाम में बच्चे बिलो वेट है। महिलाओं का जो बॉर्न का मार्क्स इंडेक्स है वो भी बिलो है। अभी देखिए, अभी फिलहाल अभी 1-2 दिन में हिमंत बिश्व शर्मा ने 2 साल पूरा किया है गवर्नमेंट का, और 2 डेकेड पूरा किया है हुकूमत का। इसलिए लोगों ने अकाउंट मांगना शुरू किया है, लोगों का मूड बना है कि अकाउंट मांगे इनसे, क्योंकि वो 2 साल एज ए मुख्यमंत्री और 20 साल एज ए हुकूमत कंटिन्यू, मुसलसल 20 साल से हुकूमत में है आसाम में। तो और आसाम की जो सारी मिनिस्ट्रियां हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, ये सब में ये रहे हुए हैं। तो अभी इसीलिए लोगों को मन डाइवर्ट करने के लिए ये राइट विंग्स का वर्ल्ड में एक फिनोमिना है कि नॉन इश्यूज को इशू बनाओ। अभी इतना समय तो राइट विंग तो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ग्रुप्स भी हो गए ना। राइट विंग का मतलब फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ग्रुप्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी शरीयत को कहते हैं, वो भी राइट विंग ही है चंपक कालिता जी। जो संविधान के ऊपर अपने पर्सनल रॉस को रखते हैं वो भी राइट विंग ही है। राइट विंग का मतलब जो अपने धर्म के ऊपर बाकी किसी को नहीं मानता वो राइट विंग है सर। तो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स भी राइट विंग ही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक आदमी को 4-4 बीवियां रखनी चाहिए असम में? आज का कौन आदमी है जो ऐसा अफोर्ड भी कर सकता है सर? किसी को ठीक से जिंदगी भी दे सकते हैं वो? तो क्या आपको तो कहना चाहिए कि मत करिए। अरे हम कहाँ कह रहा करिए? तो आप भी तो फिर आपको तो फिर सपोर्ट करना चाहिए, तो अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट कैसे करे? ये अरे अच्छा सुझाव है, समाज के लिए अच्छा है तो सपोर्ट कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपका पर्सनल लॉ का एंडोर्स किया हुआ है, संविधान ने एंडोर्स किया हुआ है, तो आपके पास फिर तो राइट विंग आप हो गए कि आप कह रहे हैं नहीं संविधान नहीं, कॉमन लॉ नहीं, मेरा ही लॉ चलेगा। तो फिर तो राइट विंग आप हुए, तब तो एक्सट्रीमिस्ट आप हुए, फंडामेंटलिस्ट आप हुए। आप जैसे बोल रहे हो, आपको तो मैं लग रहा है कि आपको माफी चाहता हूं, लेकिन आपका स्टैंड लग रहा है जैसे कोई आप भी कोई स्पोक्स पर्सन है, कैसे लगे? आपको ऐसा लग रहा है, पर मैं तो स्पोक्स पर्सन इस बात का हूं कि सबको बराबर का लॉ होना चाहिए। मैं स्पोक्स पर्सन इस बात का हूं कि औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, उसको बराबर का हक होना चाहिए। मैं तो इस बात का हकदार हूं कि अगर आपको लगता है कि एक आदमी 4 बीवियां रख सकता है, तो आपको यह भी कहना चाहिए कि एक औरत 4 पति रख सकती है। हमारे देश में कानून बनाएंगे आप? मैं तो कहता हूं भाई, आप खुद को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कैसे 4-4 बीवियां रख के आप उनके साथ क्या जस्टिस करेंगे? क्या इसका कोई आंकलन है? क्या आप उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर करता है, ये वन साइडेड डोर क्यों है? मैं तो इस बात का स्पोक्स पर्सन हूं। अगर देखें तो ये समस्या कितना % है? अगर छोटा ही % है तो फिर आपको कानून से प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये समस्या कितना % है? अरे सर, अगर समस्या छोटी है, देशों में हम लोग, अरे तो सर समस्या अगर छोटी है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट इंडेक्स में तो बाकी समस्या है, इसमें बात करिए। तो अगर उस डेवलपमेंट इंडेक्स से इस कानून से फर्क पड़ता है तो फिर आप सपोर्ट कीजिए, मैं वही कह रहा हूं। और अगर आपको लगता है फर्क नहीं पड़ेगा तो विरोध मत कीजिए। प्रमोद स्वामी जी, और भी बहुत सारे विषय हैं। ये जानबूझ के आप एजेंडा चला रहे हैं। ये चंपक कालिता जी कह रहे हैं कि असम में आपके पास नंबर्स हैं। प्रमोद स्वामी जी, चंपक कालिता पूछ रहे हैं असम में क्या नंबर्स है, असम में कितने घरों के अंदर और क्या % है पॉलीगैमी का? कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं गैर कानून? बोलिए। देखिए आपने अपनी चर्चा में कुछ वेद पॉइंट उठाए। वेद पॉइंट आपने ऐसे उठाए कि अगर 4 शादी करने का अधिकार अगर पुरुष को है तो फिर महिला को वो अधिकार क्यों नहीं है? तो ये एक वेद प्रश्न है। अब देश में एक ये भी चर्चा होगी कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, इस पर भी देश पे चर्चा होगी। चंपक कालिता जी ने कहा
कि हमने कोई कदम नहीं उठाया। हमने तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के विरुद्ध में हम लोग कानून लेकर के आए, लेकिन यही जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं ये लोग उसका विरोध करते हैं, ये उसका भी समर्थन नहीं करते। तो अगर देश में अगर कोई कुप्रथा है और अगर प्रोग्रेसिव जो लोग, जो सोच वाले लोग हैं, वो अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके हम लोगों को महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम लोग सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब वुमन एम्पावरमेंट के लिए जब काम करने के लिए हम जब जाते हैं तो फिर हमको जाति, धर्म और धर्म के आधार पर भेदभाव करके उसको गुमराह किया जाता है। जैसे कि अभी 3 तलाक के खिलाफ जब हम कानून लेके आए, तो 3 तलाक के खिलाफ जब कानून लेकर आए तभी इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया। तो जब भी कोई रिफॉर्म्स की बात होती है तो ये फंडामेंटल नहीं, इनका आरोप ये है कि रिफॉर्म सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर, ओवरऑल समाज के ऊपर डायरेक्टेड नहीं है, एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर डायरेक्टेड है। ये आरोप आप पर है। आनंद जी, ये कानून सिर्फ किसी एक संप्रदाय या एक धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। ये कानून सबके लिए है। और कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक एक कमेटी गठन की गई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद में देखेंगे कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर देखते हैं किस दिशा में। अगर समाज के कल्याण के लिए है तो उसका समर्थन सबको करना चाहिए, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर समाज के एक पर्टिकुलर तबके को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है तो फिर उसका तो विरोध होगा। पर ये विरोध करने वाले कौन हैं? क्या इन्होंने खुद 3 शादियां की हैं, या इनके भी कुछ ऐसे ये चल रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं जो, या फिर ये मत रखते हैं कि अगर मैं 3 शादियां कर सकता हूं तो कोई भी महिला 3 शादियां कर सकती है? तो फिर ये सोच अलग है। बराबरी सबकी होनी चाहिए, एक देश, एक विधान, एक संविधान। मत तो ये है, मत तो यही है। देखते हैं क्या होता है। चंपक कालिता जी, प्रमोद स्वामी जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।